بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. وقت کی تنابیں کھینچی ہیں, دامن وقت میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اب میں کسی کو وقت دوں. ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں اگر میں کسی کو نہیں پکار رہا ہوں تو. آئیے بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں محبوب ملت, محبوب العلماء, محبوب عباس سے تشریف لانے والے نوجوان عالم دین, عالم جلیل, فاضل نبی حضرت العلامہ مولانا سعید احمد صاحب رضوی سے تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائے. کیونکہ حضرت قبلہ کی تقریر کے لیے بہت سی فرمائشیں آ چکی ہیں اور بہت سے یہاں دھڑکتے ہوئے دل بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہوں کہ مقرر عظیم آتے ہیں, جانے لطف امیم آتے ہیں, اہل محفل کو شادواں کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں. اب حضرت کے استقبال کے لیے نعرہ وہ لگائے گا جس کے جسم میں پتھر کی جگہ دل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسا نعرہ نہیں ہونا ہے یار, آج تو رات کی تاریخیاں چھائی ہوئی ہے. لگاؤ بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ کی آوازیں ایسی گونجیں کہ میں حیدرآباد کو جاؤں تو میری پیچھے پیچھے آپ کی آوازیں بھی آئے. لگاؤ بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت و بانیان جلسہ اور منبر رسول پر تشریف فرما بوقار علماء اکرام, حاضرین مجلس, پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, سردی کا ماحول ہے اور سردی کے ماحول میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیج والوں کی خوش نصیبی کہ ان کو چائے مل گئی, آواز نکل رہی ہے, لیکن آپ لوگ داد دینی چاہیے آپ لوگوں کی ہمت کی. کیا بات کہ بغیر چائے کے بھی آواز نکل رہی ہے. واہ. لیکن سلام کیا, سلام میں بھی آواز دبی ہوئی نکل رہی تھی. بغیر چائے کے نکل رہی ہے, چاہ کے بھی نہیں نکل رہی ہے. واہ واہ, یہ چاہت کا اثر ہے. کیا بات, سبحان. آواز دبی ہوئی ہے. واہ واہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال سلام اگر محبت کے ساتھ کیا جائے تو سلام کا جواب بھی ویسے ہی دینا چاہیے, لیکن عادت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سلام کیا جائے تو ذرا دھیمی آواز سے اس کو ٹال دیتے ہیں, دوسری مرتبہ سلام کیا جائے تو محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. سلام محبت کے ساتھ کیا جائے تو سلام کا جواب بھی محبت کے ساتھ دیا جائے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں, کچھ تم قدم بڑھاؤ. کیا بات, واہ 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 واہ. تو دوبارہ سلام کر لیتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وقت کی قلت دامنگیر ہے. واہ. آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وقت کافی ہو گیا ہے, لہذا اب یہ پروگرام سننے یا سنانے کے لائق وقت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی مت سمجھنا کہ دیگر یعنی دوسرے جو مولانا ہماری جماعت کے نامور خطیب حضرت علامہ مولانا خواجہ جعفر العابدین صاحب اور ان کے بعد ہمارے حیدرآباد کی معروف اور مشہور شخصیت حضرت علامہ مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ علی والنورانی آپ کے روبرو ہوئے تھے, تشریف لائے تھے اور بہترین انداز میں, بہترین لب و لہجے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کو اپنے ناصحانہ انداز میں اپنا بیان کر رہے تھے اور آپ لوگ ان کے بیان سے مستفیض ہو رہے تھے. کیا بات ہے. تو حضرات الحمدللہ حضرت کا بیان ماشاءاللہ دلوں کو چھو لینے والا تھا. اگر انہی چیزوں پر ہم عمل کر لیں, انہی چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. بے شک. اس لیے شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, دو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کریں. ارے واہ 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 واہ. طوفان نوح واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دو اشک ہی کافی ہے اگر
वाह वाह, असर करे। क्या बात। अब हम और आप, अब सुबह तक हम भी अगर 1-8-2 घंटा बयान करें, आप लोग सुने और सुनने के बाद आप बिस्तर के हवाले हो जाएं और हम ट्रेन के हवाले हो जाएं, तो मामला क्या होगा? सब हवालात में बंद हो जितना जाए। हमने सुना, क्या जितना हमने सुना, अपने बिस्तर पे जाकर सारे के सारे को गवा दिया। वाह, इसलिए कि हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है फजर की नमाज है, और फजर की नमाज हम कब अदा करेंगे? जब हमारे लिए नींद होगी, जब अपने बिस्तर से उठेंगे। जब हम जाके बिस्तरों पर लेट जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इन महफिलों से फ़ायदा क्या है? इन मजलिसों से फ़ायदा क्या है? इन जलसों से फ़ायदा क्या है? ये महफिलें, ये जलसे हमें किस चीज़ की दावत देते हैं? नमाज की दावत देते हैं, नमाज की दावत देते हैं। और नमाज क्या है? नमाज वो है जिसमें मोहब्बत रसूल नज़र आए। नमाज वो है कि जिसके अंदर मोहब्बत रसूल नज़र आए। तो बहरहाल हमारे परवेज़ भाई ज़्यादा इसरार करने लगे, ट्रेन का वक्त तो हमारी करीब आ गया है और इंशाअल्लाह ताला सरज़मीन महबूबाबाद पर फिर हाज़िर होना है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो। लिहाजा जब आपके रूबरू में आया हूँ, चंद बातें आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। ये मत समझना कोई लंबा चौड़ा मेरा बयान नहीं रहेगा, इसलिए कि वक्त नहीं है। मैं तो आपके इलाके का रहने वाला हूँ, ये समझिए कि जैसा खम्मम ही का रहने वाला हूँ। आपके गाँव में, बस्ती में आता जाता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब नहीं तो फिर कभी हमारी और आपकी तफसील मुलाकात होगी। लिहाजा आओ एक मरतबा अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात एक मरतबा नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक इमामुल कलाम कलामुल इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के कलम मुबारका से लिखे हुए निकले हुए 2-3 ऐसे लफ्ज़ों को मैं पेश कर रहा हूँ जिनको आला हज़रत ने बयान किया है। आला हज़रत फरमाते हैं सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। क्या बात है। या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। सरकार आला हज़रत फरमा रहे या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। और आखिरी जुमला मैं आपको बोल दूं, वाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये अर्श व कुर्सी, ये ज़मीन और आसमान, ये चांद और सूरज, ये हवा, ये फिजा, ये वादियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये नदी और नाले, ये चश्मे, ये इंसान और हैवान, ये जिन्नात, तमाम के तमाम कुल कायनात। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में भेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान की शायरी देखो, आला हज़रत का इश्क रसूल देखो। आज हम लोगों पर ताना ज़नी की जाती है, क्या बात। आज हम लोगों पर नुक्ता चीनी की जाती है
کیا ہم کو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بریلی والا تھا، جو مائک پر بول رہا تھا وہ بریلی والا ہے، سعید احمد رضوی جو محبوب آباد سے آیا وہ بریلی والا تھا، نظامت کرنے کے لیے مخدوم صاحب آئے وہ بریلی والے تھے۔ ہم کہتے ہیں اے لوگو تم ہمیں نہ للکارو، ہمیں بریلی والا نہ کہو۔ ہمیں بریلی والا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم بریلی میں نہیں رہتے، ہم بریلی شہر میں نہیں رہتے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا رہنے کا اترانچل ہے، ہماری ڈسٹرکٹ نینی تال ہے، ہمیں نینی تال ہی کہو، ہم نینی تال کے رہنے والے ہیں۔ آخر بریلی والا کیوں کہا جاتا ہے؟ بریلی والا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے بریلی والا کہتے ہو کہ ہم بریلی والے سے محبت کرتے ہو، ہم بریلی والے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم اس اعتبار سے کہہ رہے ہو تو ہمیں بریلی والا کیوں کہتے ہو؟ ہمیں تم کلیری بھی کہو، ہمیں تم بغدادی بھی کہو، ہمیں تم مکی بھی کہو، ہمیں تم مدنی بھی کہو، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، صابر پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب النواز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم محبت میں امیر و غریب کو نہیں دیکھتے بلکہ حبشہ کا رہنے والا اگر کالا بلال بھی ہے تو ہم اس کو اپنے سینے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر محبت رسول پائی جاتی ہے، بلال کے سینے میں محبت رسول ہے، اور جس کی طرف محبت ہو، ہم اہل عقیدت بھی ہیں اور اہل محبت بھی ہیں، ہم مدینے والے سے بھی محبت کرتے ہیں اور بریلی والے سے بھی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم بریلی والے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اس لیے کہ بریلی والا مدینے والے سے محبت کرتا ہے، بریلی والا مدینے والے سے محبت کرتا ہے، تو جدھر محبت پائی جاتی ہے اہل سنت والجماعت بھی ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ تو حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل ہے، جس محفل کے اندر ہم اور آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرات ہمارے پرویز بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جہیز کے تعلق سے تھوڑا بولا جائے کہ جوڑے کی رقم لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جوڑے کی رقم لینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو حضرات یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جوڑے کی رقم لینا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ جوڑے کی رقم لینا شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ حرام، سمجھے؟ ناجائز ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آج سماج کے اندر جو بے حیائیاں پیدا ہو رہی ہیں، آج سماج کے اندر جو گندگیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کس کی وجہ؟ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف ہمارے اور آپ کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ جوڑے کی رقم کا رسم و رواج اپنی بستی سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے نکال دیں تو قسم خدا کی کوئی غریب بچی اپنے گھر میں روتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بوڑھا باپ سسکیاں لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی غریب بچی کسی دوسرے کے بستر کی زینت بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہماری وجہ ہے کہ جب سے ہم نے چوری کی رقم کو عام کرا ہے آج غریب روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج غریب رو رہے ہیں۔ آج گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے، گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کے چہرے کی رونق اٹھ جاتی ہے، عورت کو تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورت کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، عورت کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچی پیدا ہو گئی، ایک کے بعد جب دوسری بچی پیدا ہو گئی تو پھر عورت پر تانا زنی شروع ہو گئی۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے، نہ مرد کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اگر تجھے چاہتا ہے تو بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ اگر تجھے چاہتا ہے تو بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ، نبی کریم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیوں سے جھوم جاؤ، اپنے چہرے پر ایسی نحوست پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہو جائے۔ ارے یہ بیٹی ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیتی ہے، کیا بات، جنت کا ٹکٹ دے دیتی ہے۔
جب یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، آج ماحول کیسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا آج سے 14.5 برس پہلے کا ماحول تھا۔ حضرات آپ نے ابھی سنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا عالم کیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ عربستان کا ماحول دیکھو، اور عربستان سے لے کے ہندوستان تک کا ماحول دیکھ لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عربستان سے لے کر ہندوستان تک ہر انسان کفر و گمراہی کی کفر اور گمراہی کی دلالت میں یعنی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ ہر انسان کے اوپر کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان جب اپنی صبح کرتا تھا اور صبح کرنے کے بعد جب وہ سورج کی کرنوں کو دیکھتا تھا، سورج کو نکلتا ہوا دیکھتا تھا، جب سورج کی کرنیں اس کے دروازے پر آتی تھی تو اپنی پیشانی کو سورج کی کرنوں کے سامنے خم کر دیا کرتا تھا، یعنی انسان سورج کو اپنا خدا مانتا تھا۔ جب وہ سورج ڈوب جاتا تھا تو ڈوبنے کے بعد جب چاند نکلتا تھا تو انسان کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے۔ جب انسان تاروں کو دیکھتا تھا تو تاروں کو دیکھنے کے بعد کہتا تھا ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے۔ یہاں تک کہ انسان چھوٹی موٹی چیزوں کی پوجا کر رہا تھا، پرستش کر رہا تھا، بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا انسان۔ روایتوں کے اندر آتا ہے خود ہندوستان کے اندر 32 کروڑ معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی، 32 کروڑ معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ انسان جب کسی دریا کے پاس جاتا تھا اور سمندر کی لہروں کو دیکھتا تھا تو اسے اپنا خدا مان لیا کرتا تھا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب انسان آگ کو دیکھتا تھا تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب انسان بڑی بڑی پہاڑیوں کو دیکھتا تھا تو ان کی پوجا میں لگ جاتا تھا۔ بہرحال کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو ایک اللہ واحد کی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام ہمیں اور آپ تک پہنچا تھا، انسانوں تک پہنچا تھا۔ انسان کے پاس پیسہ بہت تھا، انسان کے پاس مال بہت تھا، انسان کے پاس دولت بہت تھی، لیکن انسان پھر بھی بربریت کی زندگی گزار رہا تھا۔ امن کا ماحول نہیں تھا، ہر انسان امن پکار رہا تھا، ہر انسان سکون کی سانس لینا چاہتا تھا، لیکن انسان کو سکون کی سانس نہیں مل رہی تھی۔ عرب دیش کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر کا یہ ماحول تھا کہ اگر کوئی جوان عورت کا مرد اگر ہندوستان میں مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کو اس کی چتا پر رکھ کر زندہ راکھ کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا۔ عرب کے اندر بعض قبیلوں میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بچی کو پکڑ کے لے جاتا تھا اور گڑھا کھود کر اپنا پیر اس کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا۔ بچی کی زبان باہر نکل آتی تھی، بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، بچی کی نگاہیں باپ سے ٹکراتی تھی، لیکن باپ کی نگاہوں میں آنسو نہیں آتے تھے بلکہ باپ کی نگاہوں سے خون نکلتا تھا، آنکھوں سے خون نکلتا تھا۔ وہ بچی کی چیخو پکار کو نہیں سنا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول میں وہ بچی جب صدائیں دیا کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا کرتے تھے، اے پروردگار عالم کوئی ایسا ہادی پیدا فرما دے، کوئی ایسا راہبر پیدا فرما دے جو ہم بچیوں کی لاج رکھ لے۔ حضرات اس وقت کا ایسا ماحول تھا میرے مسلمان بھائیوں، یعنی عورت کو بہت گری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، عورت کی کوئی ویلو نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر عورت کو وقار دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے تو مصطفیٰ نے دی ہے، عورت کو یہ مرتبہ دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات تشریف آوری کا سما بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے تو مکہ کی وادیاں مہک رہی تھی، مکہ کی ہوا اور فضا مہک رہی تھی، مکہ کے در و دیوار مہک رہے تھے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی تھی، مکہ کی شاہراہ مہک رہی تھی۔ عجیب سا ماحول تھا، عجیب سا سما تھا، یہاں تک کہ سرداران مکہ جو مکہ کے سردار تھے وہ صبح کرتے ہیں، اور صبح کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تمام کے تمام صحن کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں آج یہ ماحول کیا ہے، آج یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب صبح اپنے گھر سے اٹھا تو میرے گھر سے خوشبو نکل رہی تھی، سبحان اللہ، میرا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ نبی تو آمینہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن اس سردار کے گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا کہنے لگا معاملہ یہ ہے، میری کہانی بھی سن لو، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، بہت دنوں سے علاج کرا رہا تھا لیکن میرا باپ صحت یاب نہیں ہوا، لیکن آج کی رات کیا معاملہ ہوا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اپنے باپ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں دی، میں نے اپنے باپ کو کوئی دوا نہیں دی، لیکن میرا باپ بغیر دوا کے شفا یاب ہو گیا، سبحان اللہ، صحت
दस्तयाब हो गया। हजरात इसी तरीके से चर्चे चल रहे थे, इसी तरीके से चर्चे चल रहे थे। इंसानों तो इंसानों, जब हैवानों पर नजर डाली गई, जानवरों पर नजर डाली गई, तो तमाम जानवरों को नजर डालने के बाद बयान किया गया, सुनो मक्का के अंदर वो जानवर जो कभी दूध नहीं दिया करते थे, जिनके थनों में कभी दूध नहीं होता था, आज की रात का समय ये है, आज की रात का मामला ये है, जब हमने सुबह उठकर अपने जानवरों को देखा तो असम में वहदहू ला शरीक की हमने क्या देखा, जो जानवर कभी दूध नहीं लिया करते थे आज उनके थनों में दूध मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, ये आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, नबी ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। मुसलमानों, इधर मुसलमानों का जायजा लिया गया, इधर जानवरों का जायजा लिया गया। एक सरदार फिर खड़ा हो जाता है और कहने लगा, हुजूर मैंने आज अजीब समा देखा है, अजीब माहौल देखा है। मैं अपने बाग बागीचों में गया और जाने के बाद मैंने देखा कि जो झाड़, जो दरख्त कभी फल नहीं देते थे, जिन पर कभी फूल नहीं आते थे, जो दरख्त सूख चुके थे, आज मैंने क्या देखा, कल तो मैंने उनको सूखा हुआ छोड़ा था, लेकिन आज सुबह जब मैं अपने बाग बागीचे में गया तो कसम खुदा की वो दरख्त जो सूखे हुए थे वो हरे और भरे हो गए। सुभान अल्लाह, जो जिन पर कभी फल नहीं आता था, कभी फूल नहीं आता था, आज वो फल गए और फूल गए, यानी फूल भी उन पर जारी हो गए। अल्लाह अकबर। हज़रात इसी तरीके की बातें चल रही हैं, इसी तरीके की बातें चल रही हैं। एक सरदार और है जो मक्का का सरदार है, वो खाने काबा के तवाफ में लगा हुआ है, वो काबा के अंदर से आता है और आने के बाद कहता है, भाई साहब ये मीटिंग कैसी है, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। तो तमाम सरदारान मक्का ने कहा, सुनो तुम ये माहौल नहीं देख रहे हो, तुम हवाओं को नहीं देख रहे हो, मक्का की फिजाओं को नहीं देख रहे हो, मक्का की वादियों को नहीं देख रहे हो, ये भीनी भीनी हवाओं को नहीं देख रहे हो, जो सुबह सुबह की भीनी भीनी हवाएं चल रही हैं। तो उस जब सरदारान मक्का ने इतना कहा तो वो सरदार जो मक्का के अंदर से निकल कर आया था, जो खाने काबा का तवाफ करके आ रहा था, जो खाने काबा के चक्कर लगा के आ रहा था, उसने कहा मैं सब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ देखा है, अगर सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपने दिल पर हाथ रखकर सुनो, मैंने ये देखा कि जब मैं खाने काबा का चक्कर लगा रहा था तो इधर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आगोश में एक बच्चे को लेकर आ रहे थे। वो बच्चा क्या था, हसीनो जमील था, हुस्नो जमाल का पैकर था। मैंने आज तक किसी माँ को ऐसा बच्चा जमते हुए नहीं देखा, मक्का के अंदर आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं, जिस बच्चे ऐसा बच्चा जैसा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लेकर आ रहे थे। मैंने क्या देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरी नजर ने फैसला नहीं किया, मेरी नजर खता कर गई, मेरी नजर ने फैसला नहीं किया, मेरी नजर फैसला करने पर मजबूर हो गई कि मैंने ये देखा, एक तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब बढ़ रहे हैं, एक तरफ काबा बढ़ रहा है, काबे की महराबें बढ़ रही है, काबे की महराब झुकी जा रही है। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे हैं, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। इसी की तर्जमानी करते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान, इसी की तर्जमानी करते हैं मुसलमानों आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अली रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन को रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन को रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अली रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत में लाखों सलाम। तो सरदार मक्का ने कहा, उस सरदार मक्का ने कहा, हुजूर मैंने मामला ये देखा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है और अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने इसी की तर्जमानी करके ये बयान फरमाया है, देखो नबी आखिर ज़मा पैदा हुए तो आज काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सहल में आ गए और खाने काबा का तवाफ करने लगे। आमीना के लाल, मदीने के ताजदार, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। खाने काबा के तवाफ से जब फारिग हुए, फारिग होने के बाद ये तमाम के तमाम सरदार मक्का, सरदार कुरैश के पास आ जाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, हुजूर जरा उस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा दो, उस वदुहा चेहरे वाले को हमें भी दिखा दो, उस शम्सुल दुहा को हमें भी दिखा दो। ए हुजूर, हमने ये देखा कि मक्का की वादियां महक रही है, लेकिन वो चेहरा कौन सा है कि जिसकी वजह से ये वादियां महक रही है, जिसकी वजह से शारा महक रही है, जिसकी वजह से जानवरों के थनों में दूध आ गया है, उस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बाहों को फैला दिया। आला हजरत फरमाते हैं, वो आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, कमाल
नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत रिजवान इसी की तर्जुमानी करते हैं। इधर रही सरदार मक्का है, ये तमाम के तमाम सरदार मक्का उस बच्चे का तवाफ करते हैं, यानी उस बच्चे का दीदार करते हैं जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम के तमाम सरदार मक्का ने भी यही कहा था, यही कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मुख्तसर लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ। अब सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे को लेकर आमीना की बारगाह में आ जाते हैं, हजरत आमीना की गोद में ले लेते हैं। हजरत आमीना बयान फरमाती है, सरकार मेरी आगोश में आए, मेरी गोद में आए तो मामला क्या हुआ। इधर अबर का एक टुकड़ा यानी बादल का एक टुकड़ा मेरी गोद में आया और आने के बाद उसने मेरी गोद से मेरे बच्चे को उठा लिया। मेरा बच्चा गायब हो गया, मैं परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ गया, नूर का पैकर कहाँ गया, यासीन वो ताहा कहाँ गए। मेरा हाल हजरत आमीना बयान फरमाती है, मैं परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ गया। इतने में आवाज आती है, आवाज आती है, आमीना घबरा नहीं, ये हमारा महबूब है, हम इसको मशरिक और मगरिब की सैर करा रहे हैं, इसको मशरिक और मगरिब की सैर करा रहे हैं। नबी आखिर ज़मा को मशरिक और मगरिब की सैर हो रही है। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आमीना के घर में है। हजरत चंद औरतें हजरत आमीना के घर में आ गई और आने के बाद उन्होंने फैसला किया और हजरत आमीना से बयान फरमाया, ए आमीना हमने समा ये देखा, हमने माजरा ये देखा, हम जब तुम्हारे सहन में थे तो हमने क्या देखा कि चांद तुम्हारे सहन में उतर रहा है, सूरज तुम्हारे सहन में उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चांदो सूरज तुम्हारे घर में टूट पड़ेंगे, तुम्हारे घर में गिर पड़ेंगे। हजरत आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान इसी की तरह तर्जुमानी करके इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि उतार के उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार के उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था नूर का बट रहा था बाड़ा और चांद और सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात बांट रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत ये चांद और सूरज भी नबी का दीदार करने के लिए आ रहे थे। हजरत ऐसे पुरफतन दौर में हमारे रात के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद दुनिया वालों को यही पैगाम दिया, ए लोगों अगर तुम्हारे घर में कोई बच्ची पैदा हो जाए तो उसको हिकारत की नजर से ना देखना। ए लोगों अगर कोई बच्ची पैदा हो जाए तो उसको अपने सीने से लगाना और कैसे सीने से लगाना, जैसे नबी आखिर ज़मा ने अपनी बेटी फातिमा को अपने सीने से लगाया था, ऐसी मोहब्बत करना जैसे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत की थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की भी शादी की थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा की भी शादी हुई है। आपने कभी फातिमा का माहौल देखा है, आपने कभी फातिमा की सीरत को पढ़ा है, आपने कभी फातिमा के तकवे के बारे में सुना है, फातिमा का तकवा कैसा था, फातिमा की सीरत कैसी थी, फातिमा का किरदार कैसा था, फातिमा का अखलाक कैसा था। यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने मकान से बाहर निकलती थी तो तमाम के तमाम मक्का की औरतें कहती थी, तमाम के तमाम मक्का के लोग कहते थे, या रसूल अल्लाह ये बूढ़ी औरत आपके घर में कौन सी है जो आपके घर से निकलती है, ये बूढ़ी औरत कौन है जो आपके घर से निकल कर जाती है। नबी आखिर ज़मा ने फरमाया, ए लोगों खबरदार ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है बल्कि ये मेरी 18 साल की बच्ची फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 18 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, या रसूल सुभान अल्लाह, आला सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा भी देख लो, फातिमा तो ज़हरा का चाल देख लो कैसी थी, फातिमा तो ज़हरा का किरदार देख लो कैसा था। फातिमा तो ज़हरा जब निकलती थी तो ऐसे निकलती थी कि लोग उसको बूढ़ी समझे। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरीके से निकल रही है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा का और अगर देखना है तो आओ हदीस मुस्तफ़ा उठाओ, आपको पता चलेगा। आप तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा। हमें तारीख बताती है कि फातिमा तो ज़हरा की सीरत का आलम ये था, फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का आलम ये था कि कभी चांद और सूरज ने फातिमा के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। फातिमा के चेहरे को नहीं देखा, न कभी चांद ने फातिमा के चेहरे को देखा, न कभी सूरज ने फातिमा के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा तो ज़हरा कैसे जिंदगी बसर करती थी। वो फातिमा तो ज़हरा बयान फरमाती है, ए लोगों जितनी मुसीबतें मेरे ऊपर आई है, जितनी परेशानियां मेरे ऊपर आई है, काश अगर इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को मैं दिन पे डाल देती, दिन के ऊपर उंडेल देती। अगर दिन पे डाल देती तो वो दिन भी इसको बर्दाश्त ना करता और दिन रात में तब्दील हो जाता, रात में बदल जाता। ऐसी ऐसी परेशानियां फातिमा तो ज़हरा ने झेली है, फातिमा तो ज़हरा ने उठाई है। अल्लाह अकबर। हज़रत ये फातिमा तो ज़हरा है कौन? ये नबी की बेटी है, खातूने जन्नत है। दुनिया की कोई भी औरत जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब कि फातिमा से टिकट ना मिल जाए, तो जिसके दिल में फातिमा
फातिमा की मोहब्बत होगी वही औरत जन्नती होगी, सुभान अल्लाह। वही जन्नत में जाने की मुस्तहिक होगी, वही जन्नत में जाने की मुस्तहिक होगी। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, आज फातिमा तो ज़हरा की सीरत को भी देख लो और अपने माहौल को भी देख लो। आज हमारी माँ और बहनें घरों में रहती हैं, बच्चे गोद में रहते हैं तो बहाना कर देती है, मौलाना हमारे बच्चे ने पेशाब कर दिया, उसकी वजह से फजर की नमाज ज़ाये हो गई, ज़ोहर की नमाज चली गई, असर की नमाज चली गई, इशा की नमाज चली गई, मगरिब की नमाज चली गई। बहरहाल तरह तरह के बहाने किए जाते हैं मेरे मुसलमान भाइयों। लेकिन नबी आखिर ज़माने फरमा दिया, ए लोगों, ए मेरी उम्मत की औरतों सुनो, अगर तुमने बच्चों को पैदा किया है, बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों की परवरिश की है, तो इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरी बेटी फातिमा ने भी हुसैन को जन्म दिया है, मेरी बेटी फातिमा ने भी हसन को जन्म दिया है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा ने कभी भी अपनी नमाज को कज़ा नहीं किया। फातिमा दिन में भी इबादत करती थी, फातिमा रात में भी इबादत किया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फातिमा रात में भी इबादत किया करती थी, फातिमा दिन में भी इबादत किया करती थी। आपने एक हदीस सुनी होगी, बहुत ज्यादा वो मशहूर हदीस पाक है कि सर्दी की लंबी लंबी रातों में फातिमा तो ज़हरा अपने बच्चों को सुला दिया करती थी और अपने बच्चों को सुलाने के बाद नमाज इशा के बाद जब खाने से सब लोग फारिग हो जाते थे, फातिमा तो ज़हरा अपना मुसल्ला बिछा दिया करती थी और बिछाने के बाद इबादत में मशगूल हो जाया करती थी। सर्दी की रातें, लंबी लंबी रातें, सर्दी कड़ाके की होती थी, सर्दी होती थी, सर्दी के मौसम में फातिमा तो ज़हरा नमाज अदा किया करती थी, यहाँ तक कि रब की रात खत्म हो जाती थी, फातिमा की इबादत खत्म नहीं होती थी, फातिमा की इबादत खत्म नहीं होती थी। रब की बारगाह में फातिमा ने उसकी मौला, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रात पैदा कर दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। सुभान अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। अल्लाह अकबर। फातिमा की इबादत को देखो, फातिमा के तकवे को देखो, फातिमा तो ज़हरा के पर्दे को देखो। फातिमा तो ज़हरा रातों रात इबादत कर रही है, फातिमा तो ज़हरा रातों रात इबादत कर रही है। लेकिन आप तारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा, फातिमा तो ज़हरा रातों रात इबादत करती थी, लेकिन फातिमा ने रब की बारगाह में कभी अपने बारे में फरियाद नहीं की। फातिमा तो ज़हरा ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि फातिमा का चूल्हा 3 दिन तक नहीं जला करता था। 3 दिन तक फातिमा भूखी रहती थी, हसन और हुसैन भूखे रहते थे, हजरत अली भूखे रहते थे। बस हजरत हसन और हुसैन जब रोते थे तो फातिमा तो ज़हरा चूल्हे के अंदर आगी जलाकर उस पर खाली हांडी रख दी थी पानी भर के, ताकि बच्चों को सुकून हो जाए। रात में बच्चे सो जाया करते थे, फातिमा तो ज़हरा इबादत में मशगूल हो जाया करती थी, इबादत में मशगूल। रात वो नबी की बेटी थी, 3 दिन भूख रहने की जरूरत नहीं थी। नबी की बेटी फातिमा फरिश्तों से इरशाद फरमाती, ए जिब्रील मन्ना व सलवा लेकर आ जा, ए जिब्रील जन्नती खाना लेकर आ जा। तो कसम खुदा की फातिमा की आवाज पर जन्नती हूरें आ जाती, जन्नती खाने आ जाते। लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने इन तमाम चीजों की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि फातिमा तो ज़हरा रातों रात जागा करती थी, रातों रात इबादत किया करती थी, रब की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा जान की उम्मत में जो आने वाली औरतें होंगी, जो आने वाली नस्लें होंगी, जो आने वाले मर्द होंगे, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, वो बहुत बड़े गुनहगार होंगे, वो गुनाहों में मुलविस होंगे, वो चुगलखोरियों में मुलविस होंगे, वो नमाजों के तारीख होंगे, नमाजों को छोड़ने वाले होंगे। ए परवरदिगार आलम, ये फातिमा अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन करती है। ए मौला, तो उन गुनहगारों को अजाब ना देना, अगर तूने अजाब देना चाहता है तो उनकी वजह से फातिमा को अजाब दे देना, लेकिन मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतों को अजाब ना देना, मेरे बाबा जान की उम्मत को तकलीफ ना देना। अम्मा फातिमा तो ज़हरा की आदत को देखो, अम्मा फातिमा तो ज़हरा के तकवे को देखो, अम्मा फातिमा तो ज़हरा की सीरत को देखो। फातिमा रोई है तो हमारे लिए, फातिमा रोई है तो तुम्हारे लिए, फातिमा रोई है तो इन गुनहगार औरतों के लिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा की भी शादी हो रही है, आज हमारी भी शादियां हो रही है, आपकी भी शादियां हो रही है। पहले शादी का माहौल अलग था, आज की शादी का माहौल अलग हो गया है। हजरात, आज का माहौल तो ये है, अगर खम्मम के अंदर किसी नौजवान की शादी हो तो जब तक पूरे खम्मम को पता ना चल जाए, जब तक इंसान की शादी नहीं होती। लेकिन आओ मदीने का वो जायजा लो और मक्का का जायजा लो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम की शादी हो जाती थी, नबी को पता नहीं चलता था, नबी को मालूम नहीं होता था आज किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल शादी होने के बाद जब नबी की बारगाह में आते थे और मुसाफा करते थे, तो जब नबी उनके हाथों पर पीला रंग देखते थे, यानी पीले रंग के हाथ देखा करते थे, तो नबी फरमाते थे, क्या भाई तुमने शादी कर ली है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? यानी शादी करना इतना इजी था। इससे ये मत समझना नबी को ये
वमा हुवा अलल गैबि बिवकील। मेरा महबूब गैब बताने में सुभान बखील अल्लाह, नहीं। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब गैब बताने में बखील नहीं है। शादियाँ इतनी इजी होती थी, महल्ले वाले को पता नहीं चलता था, महल्ले वाले को पता नहीं चलता था। मेरे मुसलमान भाइयों, एक खम्मम में भी हवा उड़ रही होगी और ये जगह जगह हवा उड़ रही है। आपने सुना होगा, बाज़ लोग कहते हैं कि साहब ये शादी जो होती है तो शादी में जो फूलों का हार डालते हैं तो ये हार डालना शिर्क है। क्या बोलते हैं? अच्छा, दूल्हे के गले में फूलों का हार डालना क्या है? शिर्क है, शिर्क। सुना है आपने? नहीं है? जिसने सुना वो हाथ उठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबने सुना है। फूलों का हार डालना क्या है? शिर्क। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, फूलों के हार में ऐसी वजह क्या है जो शिर्क हो गया? शिर्क कहते किसको है? शिर्क का मतलब क्या है? शिर्क का मतलब क्या है? ऐसे साहब हम एक जगह शादी में गए, जाने के बाद दोस्त की वजह से शादी में पहुंच गए। जाने के बाद क्या देखा, जो स्टेज लगा हुआ था, ऐसे लगा होता है दूल्हे का भी, हैं? समझे? वो दुनियावी दूल्हा थी, ये महराज के दूल्हा का स्टेज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझे? देखो अगर तबीयत उकता रही हो तो बंद कर दूं, हाँ? तो टाइम काफ़ी हो गया है। तो ऐसे स्टेज सजा हुआ था, 4 लोग बैठे हुए थे और चारों भी कोट पैंट में टाई वगैरह लगा के। अब अपन वहाँ खड़े हो गए, अक्ल हैरान हो गई, इन चारों में कोई एक दूल्हा है या चारों दूल्हा हैं? इसलिए कि हार किसी के गले में नहीं था, हार किसी के गले में नहीं था। चारों भी अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम थे, चारों भी खूबसूरत थे, चारों भी कोट पैंट पहन के और टाई लगा के थे। अपन परेशान, दाद दें तो किसको दें, बधाई दें तो दे किसे, मुबारकबाद किसको दें? कहीं दूल्हे के चक्कर में दूसरे को दी तो परेशानी, क्या बात, वाह वाह। दूसरे को दी तो परेशानी। कुछ तो पहचान होनी चाहिए। अपन स्टेज पे आए, आने के बाद बाजू वाले से मालूम करा, भाई साहब इसमें दूल्हा कौन सा है? तो उसने कहा ये साइड में जो बैठे यही दूल्हा है। मुसाफा किया, मुबारकबाद दी। उनसे कहा भाई साहब अगर एक फूलों का हार डाल लेते तो बेहतर होता, पहचान करने में इतनी दिक्कत पेश ना आती। फूलों का हार डाल लेते तो बेहतर रहता। समझाने के एतबार से कर रहा हूँ, ये जोक नहीं है, हंसा ले रहा हूँ आपको। बोली फूलों का हार डाल लेते तो बेहतर रहता। अगर आपके पास वक्त नहीं था तो हमें फ़ोन कर देते, हम ही लेके आ जाते। कहने लगा मौलाना तुम मौलवी होके इल्म पढ़ने के बाद ऐसी बात बोल रहे हो कि फूलों का हार डालो। फूलों का हार डालना तो गले में शिर्क है, फूलों का हार डालना शिर्क है, शिर्क। मैंने कहा भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह चंद किताबें हमने भी पढ़ी हैं, अब ये बताओ आप शिर्क क्यों है? तो एक सवाल करो तो इधर आधर कतराते हैं, भागते हैं, दूसरा सवाल हमारे ऊपर ठोक देते हैं, समझे? तो कहने लगा मौलाना ये बताओ कि हमारे नबी ने अपने गले में फूलों का हार डाला, तो जब नबी ने अपने गले के अंदर फूलों का हार नहीं डाला तो उम्मती को फूलों का हार डालना जायज ही नहीं है, शिर्क है। मैंने कहा अच्छा, नबी ने फूलों का हार नहीं डाला तो तू इसलिए नहीं डाल रहा और उसको शिर्क बता रहा है। मैंने इशारा किया भाई साहब जो आपके गले में जो अंग्रेजी फंदा पड़ा हुआ है, जो टाई पड़ी हुई है, क्या कभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ा है? जब मेरे नबी की हजरत खदीजतुल कुबरा से 25 साल की उम्र में शादी हुई तो क्या नबी ने भी अपने गले में टाई बांधी थी? टाई बांधी थी। जब हजरत आयशा से सरकार का निकाह हुआ तो सरकार ने टाई बांधी? तब देख रहा ऊपर नीचे को, नहीं बांधी। तो जब नहीं बांधी तो तू क्यों बांध रहा है? नबी ने नहीं बांधी, तू क्यों बांध रहा है? तुझे नहीं बांधना चाहिए। फिर चल सुन, इसको भी बाजू रख। आज जो तू कोट पैंट पहन के यहाँ पर आया है, कि नबी ने भी कोट और पैंट पहनने के बाद शादी की थी? क्या नबी की सूरत ऐसी थी जैसी सूरत तू बना कर आया है? जब नबी ने कोट और पैंट नहीं पहना तो फिर तू काहे को कोट और पैंट पहनता है? उतार दे इसको। आज फंक्शन हॉल में आके 40-50 हज़ार रुपए लगा के, लाखों का खर्च करके जो तूने स्टेज सजाया,
فنکشن ہال کو سجایا کہ نبی نے بھی فنکشن ہالوں میں آنے کے بعد لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد شادی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا. تو کیوں کر رہا ہے؟ اتر جائے اس اسٹیج سے. آج یہ کیمرے وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں جس سے تیری تصویریں نکالی جا رہی ہیں، جن کا نکالنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے. کیا جب نبی کی شادی ہوئی تھی تو نبی کی بھی تصویریں نکلی تھی؟ کیا بے حیائی عام ہوئی تھی؟ تو دیکھو، نہ کوٹ پینٹ کی طرف نظر ہے، نہ ایک ٹائی کی طرف نظر ہے، نہ یہ لاکھوں روپے کی طرف نظر ہے، نہ اس فنکشن ہال کی طرف نظر ہے. نظر گئی تو کدھر گئی؟ پھولوں کے ہار کی طرف نظر گئی. پھولوں کے یا رسول. حضرات، پھول ڈالنا شرک کیسے ہو جائے؟ کم سے کم کچھ تو بتاؤ. شرک کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک کرے اس کو شرک کہتے ہیں. جو غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرے اس کو شرک کہتے ہیں. تو پھولوں کے ہار کے اندر ایسی کون سی بات پیدا ہو گئی کہ یہ شرک ہو گیا؟ یہ پھول ہے جو سنی سے محبت کرتا ہے، اور یہ سنی ہے جو پھولوں سے محبت کرتا ہے. زندہ رہے تو گلے میں رہتے ہیں، زندہ رہے تو گلے میں رہتے ہیں، اور قبر میں چلے جائیں تو پھول قبر کے اوپر رہتے ہیں. سبحان اللہ، قبر کے اوپر رہتے ہیں. سنی پھولوں سے دنیا میں بھی محبت کرتا ہے، اور سنی پھولوں سے قبر میں جانے کے بعد بھی محبت کرتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیو، حضرت فاطمہ زہرا کی بھی شادی ہوئی تھی. فاطمہ کا بھی نکاح ہوا تھا. کس کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. مولا علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. مشکل کشا کے ساتھ نکاح ہوا تھا. حیدر قہار کے ساتھ نکاح ہوا تھا. حضرات، نکاح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا دیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نبی کو اللہ نے دنیا کے خزانے عطا فرما دیے تھے. شاعر فرماتا ہے، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میرے نبی اگر چاہتے زمین کو اشارہ دیتے تو زمین اپنے خزانوں کو کھول دیتے. میرے نبی اگر چاہتے پہاڑوں کو اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر تیار ہو جاتے. لیکن نبی نے فاطمہ زہرا کو دیا تو کیا دیا؟ آؤ دیکھو، حدیث پاک کی زبانی دیکھو. نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو شادی میں کیا دیا تھا؟ اما فاطمہ زہرا کو ایک چکی دے دی تھی کہ بیٹی فاطمہ، یہ چکی میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ حضرت علی کی تم پرورش کرو، تاکہ تم اپنے بچوں کی اس سے پرورش کرو، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسو. اما فاطمہ زہرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول عطا فرما دیا تھا، اس کے ساتھ رسی عطا فرما دی تھی. اے بیٹی فاطمہ، یہ رسی اور ڈول ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکالو اور اپنے بچوں کی پرورش کرو. حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے اپنی بیٹی فاطمہ کو دنیا کی دولت دے دیتے، لیکن فاطمہ کو دولت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، اگر میں بیٹی فاطمہ کو سونے کے انبار لگا دیتا ہوں تو ہر بیٹی جب تک سونے کا انبار لے کر گھر سے نہ روانہ ہو، جب تک اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، جب تک اس سے کوئی نکاح نہ کرے گا. اس لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو وہ چکی عطا فرمائی تھی، وہ ڈول عطا فرمایا تھا. مسلمان بھائیو، فاطمہ زہرا چکی کھینچا کرتی تھی، چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی اور کنویں سے پانی نکالا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے. دن بھر کام کیا کرتی تھی، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اس طریقے سے فاطمہ زہرا اپنی زندگی کو بسر کیا کرتی تھی. لیکن آج کا سما، آج کا ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے، انسان جتنی اونچی ڈگری پر فائز ہو جائے، اگر کسی کو سرکاری جاب مل جائے تو انسان اتنا ہی انٹرنیشنل فقیر بنتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا ہی اس کا منہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر گھر میں بچہ جوان ہو جائے تو 1,00,000 2 لاکھ میں بات ہی نہیں کرتا. اگر گھر میں کسی بچے کو ڈگری مل جائے تو 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم ہونا، 10 تولے سونا ہونا. میرے مسلمان بھائیوں، یہ تمہارے باپ کی کمائی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی کمائی نہیں ہے. یہ اس نے کیسے کمائی ہوگی؟ اس کی بچی جب پیدا ہوئی تو جب سے اس نے جوڑنا شروع کر دیا ہوگا، اپنے خرچوں کو بند کر دیا ہوگا، لیکن بچی کا کھاتا بڑھانا شروع کر دیا ہوگا. ماں اور باپ کتنی مرتبہ مرے ہوں گے، کتنی مرتبہ زندہ ہوئے ہوں گے. ماں اور باپ نے راتیں کیسے گزاری ہوں گی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہوں گی، اپنی محبت کو قربان کیسے کیا ہوگا، انہوں نے اپنے جسم سے لہو کیسے بہایا ہوگا. کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج کا ماحول دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر جوڑے کی رقم طے ہو جاتی ہے، 5 لاکھ جوڑے کی رقم ہے، 10
तोले सोना है। इसके साथ साथ क्या होगा, अब खाने के मामले अलग होंगे, इधर मोटरसाइकिल वगैरह अलग होगी, जहेज का मामला अलग होगा, उधर कद्दू की खीर होगी, डबल का मीठा होगा, कुर्बानी का मीठा होगा, भुना अलग होगा, तला अलग होगा। जैसा कि तेरा बाप कमा के रख गया है, जैसे तेरे बाप ने कमाया हो, अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे हिम्मत अता फरमाई है, अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत अता फरमाई है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों होता है? तू औरत के सामने क्या हाथ फैलाता है? अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है, औरत को महकूम बनाया है, औरत के अखराजात तेरे जिम्मे है, ना कि औरत पर तेरे अखराजात जिम्मे है। हजरात, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है। अपनी औरतों की हिफाजत करो, अपनी औरतों के अखराजात को देखो। अगर तुमने अपनी औरत की हिफाजत कर ली तो अल्लाह औरत की हिफाजत के सदक़े से तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम लाख नमाजें पढ़ रहे हो, इधर देखो जोड़े की रकम भी खा रहे हो, इधर देखो सूद भी खा रहे हो। तो जिस तरीके से सूद खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, इसी तरीके से जोड़े की रकम खाना भी हराम है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। औरत बच्ची वाले पर इतना भी वाजिब नहीं है कि वो तुम्हें अपने घर पे लाकर खाना खिलाए, तुम्हारी बारात को खाना खिलाए। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो खाना खिला देता है, तुम खाना खा के चले जाते हो। लेकिन ये जोड़े की रकम का जो माहौल आज राइज हो गया है, जोड़े की रकम का मामला जो उठ गया है, ये शरीय एतबार से हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। और याद रखो, तुम जोड़े की रकमें लेने के बाद, माँ और बहनों की आंखों से आंसुओं के कतरे टपकाने के बाद जब अपनी कब्र में दाखिल होगे, नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। अगर नबी ने ये सवाल कर दिया कि मैंने बेटी फातिमा को अपने उसके जहेज में क्या दिया था, मैंने कोई दौलत नहीं दी थी, मैंने कोई दुनिया का माल नहीं दिया था, लेकिन तूने औरत बच्ची वाले को क्यों मजबूर किया था? तुम क्या जवाब दोगे? हश्र के मैदान में अगर नबी रूठ गए तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारा माहौल क्या होगा? तुम्हारे हालात क्या होंगे? आज नमाज भी सब कुछ नहीं है। नमाज पढ़ना अहम फरीजा है, नमाज हमारे लिए फर्ज है, लेकिन नमाज के साथ साथ माँ बाप की मोहब्बत भी रहनी चाहिए, नमाज के साथ साथ बीवी की मोहब्बत भी रहनी चाहिए, नमाज के साथ साथ अपनों का हकूक भी, हक भी रहना चाहिए, दूसरों के हक भी रहने चाहिए। नबी ने हमें क्या पैगाम दिया था? आपने सुना होगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा लेने के लिए आए थे, सरकार आमीना की गोद में थे, सरकार आमीना की गोद में थे। हजरत हलीमा ने कहा, ए बीबी आमीना, इस बच्चे का दीदार हमें भी करा दो, इस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा दो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत हलीमा सादिया जो कबीले सास से चलकर आई थी, हजरत हलीमा सादिया जब आई तो नबी आराम फरमा रहे थे, नबी सो रहे थे। आपने देखा होगा जब नबी मेराज की रात जा रहे थे, नबी जब भी सो रहे हैं, इधर हलीमा आ रही है तो नबी जब भी सोते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके पैगंबर सो रहे हैं, नन्ही सी उम्र है, छोटी सी उम्र है, सरकार के ऊपर चादर पड़ी हुई है, सरकार सो रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया के लिए सरकार के चेहरे मुबारका से चादर को हटा दिया गया। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, जब मैंने सरकार के चेहरे को देखा तो रात में सरकार सो रहे थे, लेकिन सरकार सोते सोते मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। चेहरे से जब नकाब हटाया तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। अब रात देखो, जब बच्चा, छोटा सा बच्चा नींद में मुस्कुराता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। माँ को भी प्यार आता है, बाप को भी प्यार आता है, लेकिन वो आम बच्चा नहीं। नबी आखिर ज़मां है, मुस्कुरा रहे हैं, शम्सुद्दोहा है, मुस्कुरा रहे हैं, ताहा व यासीन है, मुस्कुरा रहे हैं। नबी मुस्कुराए तो कायनात मुस्कुरा रही है। हजरत हलीमा सादिया ने नबी को अपने हाथों में लिया, अपने आगोश में लिया और लेने के बाद सीने से लगा लिया। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैंने नबी को वहीं पर दूध पिलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सरकार के मुंह में मैंने दूध को दिया तो सरकार ने दूध नोश फरमाया, सरकार ने दूध को पी लिया। लेकिन मेरे दाएं के बाद जब बायां पिस्तान दिया, सरकार के दहने मुबारका में जब मैंने बायां पिस्तान दिया तो सरकार ने अपने मुंह को घुमा लिया, सरकार ने अपने मुंह को फेर लिया। फिर मैंने सोचा मामला क्या है, फिर मैंने दाहिना पिस्तान दिया, सरकार ने फिर दाहिने पिस्तान से दूध पिया। उसके बाद फिर मैंने बायां पिस्तान दिया, लेकिन सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। ये बच्चा दाएं तरफ से पीता है लेकिन बाएं तरफ से नहीं पीता। मैं तो जब पैगंबर पैदा भी नहीं हुए, जब से इस नबी के मौजज़े देखती हुई नजर आ रही हूँ। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया, ऐसा नहीं है, जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था तो मेरी गोद में आने के बाद बच्चे ने दाएं तरफ से भी दूध पिया था, बाएं तरफ से भी दूध पिया था। और पीने की वजह क्या थी? इसलिए कि नबी का कोई भाई नहीं था, नबी तन्हा थे,
नबी पैदा हुए बाप का विसाल हो गया था। हजरत अब्दुल्ला पहले ही रुखसत हो गए थे और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए नबी को मालूम था ये दोनों जो है ये हक मेरा ही है, इधर भी हक मेरा है, इधर भी हक मेरा है। इसलिए हजरत आमिना के दोनों पिस्तान से नबी ने दूध नोश फरमाया, लेकिन हजरत हलीमा के दाहिने पिस्तान से दूध नोश फरमाया, बाएं पिस्तान से दूध नोश नहीं फरमाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी हजरत हलीमा सादिया अपने कबीले में अपने बेटे को छोड़ कर आई थी, अपने बच्चे को छोड़ कर आई थी। नबी ने फरमाया जो हलीमा सादिया जो मेरा हक था वो मैंने ले लिया, जो दूसरे का हक है मैंने छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदा जिंदा। हजरात उस वक्त में भी जब हमारे और आपके पैगंबर अभी बचपन के आलम हैं, अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, नबी उस वक्त के आलम में हमें ये चैलेंज दे रहे हैं, हमें ये किरदार दे रहे हैं, हमें ये अखलाक दे रहे हैं, ए लोगों कभी दूसरे का हक नहीं मारना, हक तलफी मत करना, भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, नंगे को कपड़ा पहना देना, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारना, कभी किसी के हक तलफी मत करना, हक तलफी मत करना। इसलिए कि जो अल्लाह के हुकूक हैं अगर उसमें कमी करोगे, अल्लाह रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन अगर तुमने किसी दूसरे का हक मारा तो जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे, अल्लाह भी उसको माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। तो मेरे मुसलमान भाई, ये जोड़े की रकम जो है, जो आज ये आम जो हो गई है, इस जोड़े की रकम को खत्म कर दो, इस जोड़े की रकम के रस्म रिवाज को खत्म कर दो। ये रस्म रिवाज हमें और आपको मुस्तफ़ा ने नहीं दिया, ये किरदार हमें और आपको मुस्तफ़ा ने नहीं दिया। हजरात इसको अपने और हमारे दरमियान से निकाल दो। अगर ये जोड़े की रकम और ये रस्म रिवाज अगर खत्म हो गए तो कसम खुदा की हमारी जमात के अंदर एक ऐसा माहौल और एक ऐसा समा पैदा हो जाएगा कि कोई गरीब बच्ची अपने घर में न रहेगी, कोई बाप बच्ची के पैदा होने पर मायूसी का इजहार ना करेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, नबी ने फरमाया जब घर में बच्ची पैदा होती है तो रहमतें लेकर पैदा होती है, रहमत लेकर पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस औरत ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, 3 बच्चियों को पैदा किया, तो सरकार फरमाते हैं मैं उसकी जमानत देता हूँ, अल्लाह उन 3 बच्चियों के सदक़े से दोनों माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, दोनों माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। सहाबी रसूल खड़े हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बच्चियां हो, नबी ने फरमाया वो दोनों बच्चियां अपने माँ बाप को जन्नत में लेके जाएंगी। फिर सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जिनकी 1 बच्ची हो, नबी ने फरमाया वो 1 बच्ची उनको जन्नत में लेके जाएगी। फिर सहाबी रसूल खड़े हो गए, आका आपकी उम्मत में बाज़ औरतें ऐसी भी होंगी जिनके कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, उन्हें जन्नत में ले जाने वाला कौन है? नबी ने फरमाया जिसका कोई नहीं उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके जिसका कोई नहीं उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे मुसलमान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औरतों को ना मारो, अपनी औरतों को ना सताओ, अपनी औरतों को गालियां ना दो, इसलिए कि औरत मारने की चीज नहीं है, औरत सताने की चीज नहीं है। तुम उसके साथ रहम का मामला करो, सुलह रहमी करो, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों के साथ की है। आप तारीख का मुताला करें, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ें तो आपको पता चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, लेकिन नबी ने कभी अपनी बीवियों को मारा नहीं, नबी ने कभी अपनी बीवियों को गालियां नहीं दी, नबी ने कभी अपनी बीवियों को सताया नहीं। तुम अपनी बीवियों को अपने सीने से लगा कर रखो, रहमो करम का मामला उनके साथ रखो। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुमने औरत के साथ सुलह रहमी कर ली तो अल्लाह तुम्हारे साथ सुलह रहमी फरमाएगा और ऐसा रहम फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें औरत के सदक़े से वली बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरे मुसलमान भाइयों, आज का माहौल क्या है? आज का माहौल तो ये है कि जब देखो इंसान जोड़े की रकम लेता है, 5 या 6 लाख रुपए लेता है, और इधर वो सोने और चांदी के अंबार तुम्हारे घर में लेके आती है, इधर फंक्शन हॉल में इधर भुना अलग है और तला अलग है, तो वो तमाम की तमाम चीजें लेके आती है। अब तुम्हारा मामला क्या है? कभी नौकरी को जाते हो, कभी नौकरी को नहीं जाते। जब इतने जोड़े की रकम लेकर आएगी, क्या वो तुम्हारी बातों को सुनेगी? क्या वो तुम्हारे अहकाम पर अमल करेगी? क्या तुम जो कहोगे उसको वो मानेगी? नहीं मानेगी, इसलिए कि उसने तुम्हें खरीद लिया है। अब वो जो कहेगी उस पर तुम्हें अमल करना होगा। अगर वो कहे कि तुम्हें माँ से दूर रहना तो तुम्हें रहना होगा, अगर वो कहे बाप से दूर रहना तो तुम्हें रहना होगा, इसलिए कि मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी बन गई है। लेकिन नबी ने तो फरमा दिया अगर बीवी कहे माँ को छोड़ दो तो बीवी को छोड़ने का हुक्म है, लेकिन माँ के कदमों को चूमने का हुक्म है, माँ को पकड़ने का हुक्म है। इसलिए कि बीवी आज आई है, ये बीवी आज आई है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें
तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा था, 9 महीने अपने शिकम में रखा था, और तुम्हारी वजह से उसने अपनी नींद को कुर्बान कर दिया था, तुम्हारी वजह से उसने अपने चैन को कुर्बान कर दिया था, तुम्हारी वजह से उसने तमाम तकलीफें झेली थी। जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वजह से वो जिंदगी और मौत से लड़ी थी। यहाँ तक कि बाज माएँ तो ऐसी होती है, बच्चे को जन्म देती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने में इंतकाल हो जाता है, माँ मर जाती है, लेकिन आखिरी सांस भी अगर उसके अंदर रहती है तो वो यही देखती है मेरा बच्चा सलामत है या नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। माँ को तकलीफ होती है, माँ परेशान हाल होती है, बच्चे को जन्म देती है, अपनी परेशानी को नहीं देखती, अपनी तकलीफों को नहीं देखती, अपने चैन और सुकून को नहीं देखती, बल्कि सबसे पहले अपने लाल को देखती है, सबसे पहले अपने बच्चे को देखती है। आज तुम कहते हो हमारी माँ हमें नहीं समझती, हमारा बाप हमें नहीं समझता, हमारी माँ हमारे साथ जुल्म करती है, हमारा बाप हमारे साथ जुल्म करता है। सुनो, अगर माँ बाप तुम पर जुल्म करते तो उसी दिन तुम्हारा गला घोट कर मार देते। जिस दिन तुम्हें दुनिया में पैदा किया था, जिस दिन तुम उनके शिकम से बाहर आए थे, 9 महीने उसने किस तरीके से तुम्हें पेट में रखा होगा, 9 महीने किस तरीके से उसने करवटें ली होंगी, 9 महीने के अंदर जब तुम उसके पेट के अंदर करवटें ले रहे होगे तो किस तरीके से उसे तकलीफें हुई होंगी। 9 महीने के बाद जब तुम उसके पिस्तान से दूध पीते थे और उसके बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो उस बिस्तर पर वो खुद सोती थी, तुम्हें अपने सीने पे सुलाती थी। कभी तुमने सोचा है, कभी उस माँ के बारे में तुमने सोचा है? आज नौजवानों का माहौल ये हो गया, नौजवान आपस में मिलकर होटलों में जाते हैं, हजारों रुपया उड़ा देते हैं, 100-150 रुपये उड़ा देते हैं, उड़ाकर चले आते हैं, लेकिन माँ अगर 10 रुपये मांगे तो जान निकल जाती है। माँ को झिड़कियां मिलती है, माँ बाप को झिड़कियां मिलती है, माँ बाप को ताने मिलते हैं, माँ बाप को गालियां मिलती है, माँ बाप को सताना मिलता है। माँ बाप की किस्मत में क्या है? माँ बाप की किस्मत में यही है, अरे नादान, जो पैसा तू दोस्तों में हराम में उड़ा कर आया है वही पैसा अगर माँ बाप पर खर्च करता, अल्लाह इस खर्च की वजह से तुझे जन्नत अता फरमा देता। हज़रत नबी ने फरमाया कि तुम नेक अमाल करो, नेक अमाल का बदला जन्नत है। आज तुम नमाजें पढ़ लो, नमाजें पढ़ने के बाद ये समझो मैं जन्नती हो जाऊंगा। हज़रत नबी ने ये नहीं फरमाया, कुरान के अंदर कहीं ये नहीं आया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, कुरान के अंदर ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तुम नमाज पढ़ो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। कुरान ने नहीं फरमाया, हदीस में नहीं है कि तुम नमाज पढ़ोगे जन्नत मिल जाएगी, लेकिन नबी ने फरमाया तुम अपनी माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के तले है। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के तले है। माँ की खिदमत कर लो, माँ के कदम बोसी कर लो, माँ को नाराज मत करो, इसलिए कि माँ बाप नाराज हो गए, लाख सिजदे करते रहो, लाख नमाजें पढ़ते रहो, जब तक माँ बाप नाराज हैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई सिजदा कबूल नहीं होगा, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। नमाज पढ़ना हमारे लिए फर्ज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को ढा दिया। और सरकार ने यह भी फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, और सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम नमाजें पढ़ो। और बुखारी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जो नमाजी नहीं है उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है। आज जितने भी दुनिया के अंदर वली पैदा हुए, जितने भी नबी पैदा हुए, यानी पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद जितने भी वली पैदा हुए, कोई एक वली ऐसा दिखा दो जिसने नमाजों को तरक करा हो, नमाजों को तरक करा हो। हर वली नमाजों को पढ़ने के बाद वली बना है, माँ की खिदमत करने के बाद वली बना है। मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें। और नबी ने फरमाया दाढ़ी मेरी सुन्नत है, अपने चेहरों पर दाढ़ी भी सजा लो, अपना चेहरा इस्लामी बना लो, अपना माहौल इस्लामी बना लो, अपने घर का माहौल इस्लामी बना लो। जब तुम इस्लाम के माहौल में ढल जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत तुम्हारी हो जाएगी, दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी, जन्नत तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन चंद जुमलों पर हमें अमल करने की तौफीक
عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے, گلشن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو ہم آپ سے پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ ہدایت نور کے باغ میں چہکا طیبہ کا چاند, اوڑھ کر حسن حق دم کا طیبہ کا چاند, خود کی خوشبو سے خود مہکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. باغ دل میں پرندے چہکنے لگے, رشک میں چاند تارے ہمکنے لگے, جب ولادت کے